Hello students, today we will discuss product of two vectors. So there will be two types of product of vectors. They are dot or scalar product and second is cross or vector product. So first हम पढ़ेंगे student dot product और scalar product. In dot product, the symbol of multiplication between the vectors is represented by dot. For example, product of two vectors A and B. And this scalar product or dot product is represented by this dot. This dot represents the dot product or scalar product of two vectors. And the result of product is a scalar value. Student, इन दो vectors का जो dot product आएगा, student, वो जो result आएगा वो क्या आएगा student? Scalar. वो क्या आएगा? Scalar, that is not vector. So that's why this product of vectors is called scalar product. So result of product dot product is a scalar value. For example, work. Work is defined as product of force and displacement. This is work. Work done is equal to dot product of force and displacement. And work done is a scalar quantity. Work done is a scalar quantity because it is the dot product of two vectors and work done is a scalar quantity. So work done is defined as the product of force and displacement. Both force and displacement are vector quantities and work is a scalar quantity. So dot product of force and displacement is called work. So here force and displacement are vectors and work is a scalar. So consider two vectors A and B makes an angle theta with each other. For example, these two vectors A and B, these two vectors are inclined to each other at an angle of theta. So there are two vectors A and B makes an angle theta with each other. So for example, this is a vector A, this is a vector B, and angle between them is theta. ठीक है student? So dot or scalar product is given by, so definition क्या आ गई student? A dot B. A dot B is the dot product of two vectors is equal to magnitude of A multiplied by magnitude of B and cosine of angle between the two vectors. So dot product of two vectors is equal to आपका product of magnitude of A, magnitude of B and cos of angle theta between the two vectors. This is the basic definition of dot product of two vectors. So A dot B is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B and cosine of angle theta between them. सो cos थीटा यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट? A डॉट बी, यहां से A नीचे आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी नीचे आ जाएगा. अगर हमें एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा न्यूमेरिकल्स में तो हम ऐसे एंगल भी निकाल सकते हैं अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगे. सो cos थीटा क्या आ गया? A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड. बस बट बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट इज A डॉट बी इज इक्वल टू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A, magnitude of B and cosine of angle theta between the two vectors. So note, scalar product of two vectors is always a scalar quantity because A dot B, student क्या definition आई A dot B की? Magnitude of A, this is also scalar. Magnitude of B, this is also scalar. Cos of theta, this is also a scalar. So all these quantities are scalar quantities and the result is scalar. So that's why product of these two vectors, dot product of these two vectors is a scalar quantity. Next, if two vectors are perpendicular to each other, for example, two vectors A and B are perpendicular to each other, then angle between them कितना होगा स्टूडेंट? 90 डिग्री. सो A डॉट B आपका क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B
कॉज ऑफ 90 डिग्री एंड कॉज ऑफ 90 डिग्री स्टूडेंट कितना होता है 0. सो ए डॉट बी भी क्या आ गया 0. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट, इफ ए और बी और बोथ इज 0, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए डॉट बी इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B and cos of theta between them. So if A is equal to 0 or B is equal to 0 or both are 0, then यहाँ थीटा की स्टूडेंट कोई डेफिनेशन नहीं है, देन A डॉट B ऑलवेज क्या आएगा आपका 0. सो इफ A vector is 0, magnitude of A vector is 0 or B vector is 0 or both are 0 means if A is null vector, B is null vector or both A and B are null vector, then again A dot B is equal to 0. Whether they are perpendicular or not. But if they are perpendicular, then A dot B is always 0. But if आपका A vector कौन सा है null vector और B vector कौन सा है null vector और both are null vectors, then A dot B is equal to 0 irrespective of its direction. डायरेक्शन जो मर्जी हो, अगर A वेक्टर या B वेक्टर या दोनों वेक्टर नल वेक्टर हैं, देन अगेन A डॉट B आपका क्या आएगा स्टूडेंट 0. नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. सो A डॉट B इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम. सो कॉस थीटा यहां से क्या आ गया स्टूडेंट आपका A डॉट बी, ये A मैग्नीट्यूड नीचे आ गया, B मैग्नीट्यूड भी इसके नीचे आ गया. सो कॉस थीटा क्या आ गया A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड. यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इफ वी हैव गिवन वेक्टर्स देन वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो थीटा क्या आएगा स्टूडेंट आपका कॉज इनवर्स A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड. ये आपका कॉज इधर आ जाएगा, तो एंगल थीटा क्या आएगा स्टूडेंट कॉज इनवर्स A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड. नाउ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, let I j k be unit vectors along three mutually perpendicular coordinate axes x axis y axis and z axis. स्टूडेंट ये आपको पता है I axis along x axis, j cap along y axis and k cap along z axis. ठीक है स्टूडेंट. सो I j k be unit vectors along three mutually perpendicular coordinate axes x axis y axis and z axis. These are mutually perpendicular to each other. So first I dot I, अब स्टूडेंट x एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री. दिस इज x एक्सिस, दिस इज आल्सो x एक्सिस बिकॉज this is represented by I cap, this is also represented by I cap. So angle between them, both are parallel vectors, angle between them क्या होगा स्टूडेंट आपका 0. So I cap का मैग्नीट्यूड, अगेन I cap का मैग्नीट्यूड और एंगल क्या है स्टूडेंट आपका 0. So I डॉट I, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट आपका I cap का 1 बिकॉज दिस इज ए आपका यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और cos 0 भी कितना होता है स्टूडेंट 1. सो I डॉट I कितना आ गया आपका 1. सो I डॉट I इज इक्वल टू 1. सिमिलरली स्टूडेंट J डॉट J भी क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, वो भी क्या होगा 1. K डॉट K वो भी क्या होगा सिमिलरली स्टूडेंट 1 बिकॉज J डॉट J इज इक्वल टू J मैग्नीट्यूड, अगेन J मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन दिस J y axis, again second vector, angle between this J means y axis. ये दोनों क्या है स्टूडेंट पैरेलल, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री. सो cos 0 इज 1. तो अगेन J डॉट J K डॉट K सिमिलरली क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1 आ जाएगा. सिमिलरली J डॉट J K डॉट K इज इक्वल टू 1. ठीक है स्टूडेंट. मीन्स पैरेलल एक्सिस I डॉट I का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा स्टूडेंट 1. I डॉट I J डॉट J
k डॉट k ऑलवेज क्या आएगा स्टूडेंट 1. नाउ i डॉट j. अब स्टूडेंट ये क्या आपका i कैप अलोंग x एक्सिस एंड ये क्या स्टूडेंट आपका j कैप अलोंग y एक्सिस and x axis and y axis are perpendicular to each other and student cos 90 क्या होता है आपका 0. cos 90 क्या होता है 0. so I dot j, I का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन I एंड j क्या आ गया स्टूडेंट आपका 90 डिग्री. सो मैग्नीट्यूड ऑफ I 1 मैग्नीट्यूड ऑफ j 1 बट cos 90 इज इक्वल टू 0. आंसर क्या आ गया स्टूडेंट आपका 0. सो I डॉट j बिकॉज I एंड j i कैप एंड j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या आएगा स्टूडेंट आपका 0. सो सिमिलरली i डॉट j क्या आ गया 0. j डॉट k स्टूडेंट y एक्सिस एंड आपकी z एक्सिस ये भी क्या होती है परपेंडिकुलर. x y एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट आपका 0. k डॉट i तो स्टूडेंट आपका जो z एक्सिस है और x एक्सिस ये भी क्या आपकी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो k डॉट i भी क्या आएगा 0. सो i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1 एंड i डॉट k j डॉट k ये क्या आएगा स्टूडेंट आपका 0. ये क्या आएगा 0. सो एंगल बिटवीन दीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस 90 डिग्री. सो I डॉट j इज इक्वल टू 0. j डॉट k इज इक्वल टू 0. k डॉट i इज इक्वल टू 0. बट I डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1. Next, properties of scalar product. Scalar product of two vectors is commutative, means a dot b. क्या होगा स्टूडेंट आपका a dot b? a b cos theta. Theta is a angle between two vectors, a vector, b vector, and this is angle theta between them. So b dot a क्या होगा स्टूडेंट आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन देम तो स्टूडेंट क्या रहेगा थीटा रहेगा. बी ए कॉस थीटा इसको इंटरचेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ए बी कॉस थीटा क्या आ गया स्टूडेंट आपका ए डॉट बी. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका बी डॉट ए. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव. ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. सेकेंड प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स a dot b vector plus c vector is equal to a dot b plus a dot c. Similarly, b plus c vector dot a vector is equal to b vector dot a vector plus c vector dot a vector. b vector dot a vector plus c vector dot a vector. So this is the distributive property of scalar product of two vectors. Third property, let a and b be any two non-zero vectors. अब a and b क्या स्टूडेंट आपके non-zero vectors mean they are not null vectors. Then a dot b is equal to 0. a vector dot b vector is equal to 0. They 0 only when a perpendicular to b. So if a vector perpendicular to b vector angle between them क्या 90 डिग्री. cos 90 क्या होता है स्टूडेंट आपका 0. so that's why a dot b आपका क्या आ जाएगा 0. so a dot b is equal to 0 means angle between the two vectors are perpendicular to each other. Fourth property, for any vector a dot a. अब स्टूडेंट आपका a वेक्टर है दूसरा वेक्टर भी a है. इट मीन्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल बिटवीन देम दीज टू पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा स्टूडेंट आपका 0 डिग्री और cos 0 क्या होता है स्टूडेंट आपका 1. सो a डॉट a इज इक्वल टू
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस ए वेक्टर ही आ गया यहाँ पे, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर सिमिलर वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम दीज टू सिमिलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos 0 क्या होता है स्टूडेंट आपका 1, तो क्या आ गया ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। सो ए डॉट ए क्या आ गया स्टूडेंट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका ए स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर। सो फॉर एनी वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। If m is a scalar and a and b are any two vectors, then m a dot b vector, स्टूडेंट ये तो m आपका क्या स्केलर है, इसको आउटसाइड द ब्रैकेट m क्या आ गया a डॉट b, ये वाला आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपने a वेक्टर को बाहर लिखना है डॉट, ये आपका m तो स्केलर है, b के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या आ जाएगा a डॉट m b वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। सो इफ a and b are two vectors then a plus b whole square is equal to magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2a dot b। ये मैं स्टूडेंट आपको अभी प्रूव करके बता देता हूं, ये इस वाली थ्योरम से प्रूव होगा स्टूडेंट। a डॉट a इज इक्वल टू क्या आया था, a डॉट a आया था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सो a प्लस b स्क्वायर का क्या मतलब है स्टूडेंट आपका a प्लस बी वैक्टर डॉट a प्लस बी वैक्टर, बिकॉज a डॉट a इज इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट आपका a स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कीजिए स्टूडेंट, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। अब स्टूडेंट आपका a डॉट a क्या है a स्क्वायर, ये हम प्रूव कर चुके हैं, a डॉट b, और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है b डॉट a क्या होगा स्टूडेंट आपका a डॉट b। तो b डॉट a को हमने a डॉट b लिख लिया, b डॉट b क्या होगा स्टूडेंट आपका b स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। सो a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, वो भी लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बिकॉज a डॉट b क्या स्टूडेंट आपका ab cos थीटा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। सो a प्लस b वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ओवर होगी डेफिनेशन, क्लियर होगी स्टूडेंट आपको, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपकी a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ये भी मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूं। सो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो वही प्रॉपर्टी आ गई स्टूडेंट, a डॉट a क्या होगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगेन डॉट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, माइनस माइनस प्लस हो गए b डॉट b। सो a डॉट a क्या होगा स्टूडेंट आपका a स्क्वायर माइनस a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी b डॉट a क्या होगा स्टूडेंट आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट आपका b स्क्वायर। सो वी कैन राइट आल्सो दिस a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, और मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस
मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, देन 2a डॉट बी क्या होगा स्टूडेंट आपका, 2a बी कॉज थीटा। ठीक है स्टूडेंट आप, सो क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, सो ये वाला आपका प्रूव कर दिया मैंने। एंड नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या आया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका ए स्क्वायर और ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्या होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा स्टूडेंट आपके कैंसिल हो गए, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यू कैन आल्सो राइट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी vectors dot product of a plus b and dot product of vectors a minus b is equal to a square minus b square। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया आपके स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। सो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर है ये a1 a2 a3, इस वेक्टर a के क्या है कंपोनेंट्स, और b1 b2 b3 ये कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर b के। सो a क्या आ गया a1i a2j प्लस a3k, b वेक्टर क्या आ गया b1i प्लस b2j प्लस b3k। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ a डॉट b, वेक्टर a के कंपोनेंट्स लिख लिए यहाँ पे स्टूडेंट अलोंग x y एंड z एक्सिस, a1 a2 a3 आर कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, और वेक्टर b के कंपोनेंट्स स्टूडेंट आपके b1 b2 b3 b1i प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, b1 b2 b3 आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b अलोंग x y एंड z एक्सिस। तो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं हम i डॉट आई क्या होगा 1, तो मीन्स a1 b1 ये आ गया स्टूडेंट आपका, j डॉट j क्या होगा स्टूडेंट आपका 1, तो ये क्या आ गया आपका a2 b2, k डॉट k क्या होता है स्टूडेंट आपका 1, तो क्या आ गया a3 b3, बाकी सारे क्या होते हैं स्टूडेंट आपके 0, i डॉट j क्या होगा 0, i डॉट k क्या होगा 0, j डॉट i क्या होगा 0, j डॉट k क्या होगा 0, k डॉट i क्या होगा 0, k डॉट j क्या होगा 0, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 एंड x y and z axis are mutually perpendicular to each other, and dot product of like vectors like unit vectors क्या आता स्टूडेंट आपका i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। सो a डॉट b क्या आ गया स्टूडेंट आपका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है स्टूडेंट आपका, और ये हम पढ़ चुके हैं cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट आपका a डॉट b ओवर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे a डॉट b की ये वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाली a डॉट b की वैल्यू क्या आई a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये वाली वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट आपकी, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। स्टूडेंट भूल तो नहीं गए, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है वेक्टर a के कंपोनेंट्स है लॉन्ग x एक्सिस ax ay प्लस az अलोंग एक्स वाई एंड z एक्सिस। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या था स्टूडेंट आपका स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो यहाँ पे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट आपका a1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट आपका स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। कॉज इनवर्स यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, निकालना आ गया। सो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। सो नेक्स्ट लेक्चर हम टुमारो डिस्कस करेंगे। थैंक्स।